Dinesh Gunduraju is in charge Tamil Nadu and Puducherry. Okay, we'll wait, no problems. No. Oh, this is Can we start? Are you guys ready? Is that friend of mine behind are you ready? No problems, we'll. What I'll do is I'll just continue to sit here because otherwise it will disrupt your PC. We will just exchange seats. No, no. Our friends behind are now ready. Can we start? नमस्कार दोस्तों, आज 3 महत्वपूर्ण विषयों पर हम सब आपके बीच में हाजिर हैं। मेरे सहयोगी तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रभारी दिनेश गुंडूराव जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी और हम सब। पिछले 2 दिन से कांग्रेस पार्टी के महासचिवगण और प्रभारीगण कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के नेतृत्व में चिंतन शिविर में दिए गए मार्गदर्शन और नीतिगत निर्णयों पर मंथन कर रहे हैं। भविष्य के रास्ता क्या होगा, चिंतन शिविर के निर्णयों को किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन होगा, किस प्रकार से चिंतन शिविर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, दिशा निर्देश, दृष्टि, उसको किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे लेकर जाएगी, पिछले 2 दिन से इन पर लगातार मंथन हुआ। और कल और आज की बैठक के बारे में आप कई बार पूछ चुके हैं। 3 निष्कर्ष अभी तक उसके निकल चुके हैं और जिन पे आगे कार्रवाई होगी। पहला, 1 और 2 जून को पूरे देश में प्रभारी महासचिवगण और प्रभारीगण 2 दिन की स्टेट वर्कशॉप्स करेंगे, जिसमें पार्टी के विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के उम्मीदवारगण, पार्टी के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, वो सब उसमें हिस्सा लेंगे। और चिंतन शिविर से जो हर विषय पर बिंदु निकले हैं उनकी एक सूची हमने बनाई है, ताकि उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो सके। 2 दिन का वहां शिविर करके
उसके बारे में जरूरी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन देंगे। उसके फॉलो अप में 11 जून को जिला कांग्रेस कमेटी इसी प्रकार का एक दिवसीय शिविर लगाएंगी और जो जो निर्णय उदयपुर ऐलान के अंदर शामिल हैं उसे जिला स्तर और मंडल स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक लागू करने बारे वहां स्पष्ट दिशा निर्देश, समय सीमा और मार्गदर्शन दिया जाएगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर जिला इकाई एक 3 दिवसीय आजादी गौरव यात्रा निकालेगी, जिसमें आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 पदयात्री कंपलसरी और हजारों और कांग्रेस के साथी शामिल होंगे। चौथा निर्णय यह है कि युवा कांग्रेस एनएसयूआई मिलकर बहुत जल्द एक रोजगार 2 यात्रा का प्रदेश व्यापी प्लान बनाएंगे और उसके बारे में उनसे मंथन होकर, चर्चा होकर उसकी व्यापक रूपरेखा मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, over last 2 days after the conclusion of the Udaipur Navsankalp Chintan Shivir and the Udaipur Declaration, under the guidance of the General Secretary Organization, all the in charges and General Secretaries of the Indian National Congress have conferred with each other. And post these 2 days of discussions, we've taken 4 concrete follow-up decisions. The first one is that on 1st and 2nd June, there will be a state level Shivir in all the states across India, in which all the highlights, points and the way ahead taken from the Udaipur Declaration will be communicated to the leaders and grassroots workers. These shivers will be attended by our MPs, our MLAs, our MP and MLA candidates, our district Congress committee presidents, our Pradesh Congress committee office bearers and prominent leaders of the party. Secondly, as a follow-up thereto, on 11th of June, a similar one-day shiver will be held in on district Congress committee. The whole idea is to carry forward up to the grassroots the various highlights and points on which a way forward has been decided for the party by the Udaipur Navsankalp Chintan Shivir. Thirdly, an Azadi Gaurav Yatra spanning over 3 days shall be undertaken by all district units between 9th to 15th of August, where 75 people, in accordance with the 75th anniversary of India's freedom, will walk permanently and hundreds and thousands will join them. On 15th of August, the Pradesh Congress committees will organize one major function to commemorate the sacrifices and the lessons of the freedom movement. Fourthly, the Youth Congress and NSUI will undertake the Rozgar Do Yatra. We will be conferring with their leadership and the way forward will be decided at that point of time. Secondly, the second issue that I am here for, and then an extremely important issue Supriya ji will address. Today, the Supreme Court decision has come on release of a convicted for the terrorist murderous attack and assassination of former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. The background is like this.
On 9th of September 2018, the then AIA-DMK BJP government in Tamil Nadu recommended release of all 7 persons convicted for the assassination of former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. The recommendation of the cabinet of the AIA-DMK BJP government was sent to the former BJP leader Shri Banwari Lal Purohit, who is now the governor appointed by Modi government of the state of Tamil Nadu. The then governor. Mr. Banwari Lal Purohit, the then governor, just sat over the recommendation. He did not accept or reject. He instead referred the matter to President of India. The President of India also did not decide. Today Supreme Court said, because the nominee of the BJP government, the governor of Tamil Nadu, did not take a call to accept or reject the recommendation of the then AIA-DMK BJP government for release of terrorists and murderers found guilty up to the Supreme Court of assassination of Shri Rajiv Gandhi. Supreme Court has released 1 of them. Obviously, all 6 will now be released. Friends, the question is very simple. Is this the way? We are deeply saddened by the decision of the Supreme Court. If those guilty of terrorism and assassination of a prime minister are going to be released like this, then who will uphold the majesty and the integrity of law in this country? Secondly, Prime Minister Shri Narendra Modi and his government need to answer today. Is this your duplicity and double speak on terrorism? Are you going to be complicit in release of terrorists and murderers of the former Prime Minister of this country by silence? Is it acquiescence by silence? A nominee of Government of India does not take a call to reject such a decision of the cabinet of the state of Tamil Nadu. He instead refers it to President of India, and the President of India does not decide. So by default, you are permitting terrorists and murderers of late Shri Rajiv Gandhi to be released. Is this nationalism? Is this the duty you owe to this country? Is this the way that you are going to deal with people who are guilty of not a Congress leader, but a former Prime Minister of India? This has exposed the deep-rooted prejudice that pervades in the mind and the psyche of Prime Minister and his government. It's reprehensible and condemnable. साथियों, आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे करोड़ों करोड़ों भारतीय उनकी आत्मा आहत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राजीव गांधी के एक हत्यारे को आज रिहा कर दिया। तथ्य बड़े स्पष्ट हैं और जिम्मेवार सीधी मोदी सरकार है। 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन बीजेपी एआईएडीएमके गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने
उस समय के गवर्नर श्री बनवारीलाल पुरोहित, जो पूर्व बीजेपी नेता हैं और जिन्हें मोदी जी ने तमिलनाडु का गवर्नर लगाया था, उनको यह सिफारिश भेजी कि राजीव गांधी जी की हत्या के 7 हत्यारों को रिहा कर दिया जाए। श्री बनवारीलाल पुरोहित, तत्कालीन गवर्नर तमिलनाडु ने निर्णय लेने से कोई निर्णय नहीं लिया, ना हां में ना ना में। उल्टा अपना पल्ला झाड़ते हुए राष्ट्रपति जी को भेज दिया मामला। राष्ट्रपति जी ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि श्री बनवारीलाल पुरोहित, जो भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और शायद महासचिव और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो गवर्नर तमिलनाडु थे, उन्होंने भी और राष्ट्रपति जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए इस देरी को देखते हुए और निर्णय ना लेने की भारत सरकार के नॉमिनी गवर्नर और राष्ट्रपति जी के निर्णय को ना निर्णय लेने को कारण को देखते हुए उन्होंने राजीव जी की हत्या के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। स्वाभाविक तौर से अब सब हत्यारे रिहा हो जाएंगे। मोदी जी, कांग्रेस और भाजपा छोड़िए, क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? क्या यही आपका तौर तरीका है कि कोई निर्णय ही ना लो और आखिर में अदालत उस आधार पर राजीव गांधी जी के हत्यारों को रिहा कर दे? अगर हर वो व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास हुआ है उसे छोड़ना है, तो फिर हजारों तो तमिलियंस हैं जो जेलों में बंद है आजीवन कारावास के लिए, उन्हें भी छोड़ दीजिए। और हिंदुस्तान की जेल में जितने आजीवन कारावास के कैदी हैं उनको भी छोड़ दीजिए, और कानून और संविधान भी छोड़ दीजिए। आज देश के लिए एक दुखद दिन है। न केवल कांग्रेस के हर साथी में को अथाह दुख और रोष है, पर इस देश के हर व्यक्ति को जो भारत और भारतीयता में विश्वास रखता है, जो उग्रवाद के खिलाफ लड़ने में विश्वास रखता है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाली हर ताकत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, आज उस हर व्यक्ति की आत्मा छलनी हो गई होगी। क्योंकि ये कांग्रेस के नेता का सवाल नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। राजीव जी ने कांग्रेस नहीं, देश के लिए कुर्बानी दी थी। और अगर उनके हत्यारों को आज की सरकार अपनी छोटी और सस्ती राजनीति के लिए रिहा करवाने में को अदालत को हालात पैदा कर देगी, तो यह अपने आप में अति दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देशवासी अवश्य देख लें कि किस प्रकार की सरकारें आज सत्ता में हैं और उग्रवाद को लेकर उनका रवैया क्या है। एक तीसरा पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है। 30 साल में जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है, और मेरी सहयोगी आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी उस पर आपसे बात करेंगे और फिर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इधर आ जाइए सुप्रिया। नमस्कार। जैसा कि सर ने कहा, खाने और ईंधन के बेलगाम दामों के चलते आज जो थोक महंगाई की दर है वो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इससे पहले कि भाजपा की सरकार, उनके प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी ये कहने पर जुट जाए कि ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि थोक महंगाई दर लगातार 13 महीने से बढ़कर डबल डिजिट में रह रही है, और आज उसने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 15.08% पर। यह सरकार की उदासीनता है, यह उनकी बेरुखी है, यह बेवकूफी है, हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं यह हम सबके जीवन पर प्रभाव डालेगा। यह थोक महंगाई दर जरूर है, लेकिन इसका असर खुदरा महंगाई दर पर, रिटेल इन्फ्लेशन पर जरूर होने वाला है। और बताना यहां पर इसलिए जरूरी है किस चीजों के दाम बढ़े हैं।
ईंधन, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी के तो दाम बढ़े ही हैं, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के करीब 39%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तो 70% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन खाने की सामान के दाम लगभग 8.5% बढ़े हैं। और जिसको कमर तोड़ महंगाई कहते हैं वो यही है। और सबसे ज्यादा अगर आग लगी है किसी चीज के दाम में तो वो है सब्जियों के दाम। आलू जैसी सब्जी के दामों में भी आग लगी हुई है और सरकार की बेरुखी आम आदमी के पॉकेट में डाका डालना और उनके गले रेतने के बराबर है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि जो थोक महंगाई दर होती है उसका करीब 65% कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से आता है। तो अंततोगत्वा वो सारी चीजें जो हम और या आप रिटेल में यूज करते हैं, चाहे वो आटा हो गया, चाहे वो साबुन हो गया, चाहे तेल हो गया, चाहे बिस्कुट हो गया, चाहे खाने का तेल हो गया, वो सब महंगा होगा। और यहां पर यह बताना जरूरी है कि कई बार चर्चा जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर आकर थम जाती है, लेकिन खाने के तेल में ऐसी आग लगी है कि 29 महीने से लगातार बढ़कर 15% उसने भी महंगाई का दर पार कर लिया है। सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी ये वैश्विक समस्या है। जी नहीं, ये वैश्विक समस्या नहीं है। पर पैरिटी के हिसाब से भी हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम सबसे ज्यादा है। सब्जियों में आग ऐसी लगी है कि सब्जियों की डिमांड आधी हो गई है। इनकम कम है, लोगों की आमदनी कम है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए डिमांड पर सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। जो थोक सब्जियों के मार्केट हैं वहां से रिपोर्टों के मुताबिक डिमांड आधी हो चुकी है। क्योंकि यह सच है कि जब इनकम घटती है तो पहले शायद मीट, मछली, अंडा, दालें, इन सब का खपत कम होती है, फिर धीरे धीरे दूध की खपत कम होती है और अंततोगत्वा सब्जियों पर प्रहार होता है। और वही हुआ है, सब्जियों की डिमांड आधी हो गई है। और ऐसी सब्जी जैसे कि आलू, तो पूछना यह है कि सरकार क्या कर रही है और क्या कर नहीं सकती है। जब हमारी और आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जब हमारे और आपके लिए सब्जी से लेकर रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तब जो कंपनीज हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो एचपीसीएल हो, चाहे वो बीपीसीएल हो, उनके मुनाफे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आईओसी ने 2 दिन पहले अपना मुनाफा बताया तिमाही का, जनवरी से मार्च, जब इन्फ्लेशन लगातार डबल डिजिट क्रॉस कर रहा था, उस क्वार्टर में 6,000 करोड़ रुपए उनका मात्र प्रॉफिट आया है। तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास एल्बो रूम नहीं है, सरकार के पास एल्बो रूम बहुत है, लेकिन सरकार शायद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। और कोर इन्फ्लेशन, यहां पर यह भी बताना जरूरी है, कोर इन्फ्लेशन जिसमें ना तो खाने का सामान आता है, ना ईंधन आता है, फ्यूल आता है, वो भी 11% के पार है। तो कहीं पर भी राहत नहीं है। ना खुदरा इन्फ्लेशन पे राहत है जो 8 साल में सबसे ऊपर है, ना थोक महंगाई में राहत है जो 30 साल में सबसे ऊपर चला गया, और ना कोर इन्फ्लेशन में राहत है। और तो और आरबीआई की कल एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने यह बोला है कि आने वाले महीनों में खाने के दामों में बढ़ोतरी निरंतर होती रहेगी। और ये खाने के दाम बड़े कोई फैंसी चीजों के नहीं है, ये सीरियल्स, आटा, दाल, तेल, सब्जी, ऐसे दामों की वो बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 3-4 आंकड़े हैं जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से साफ हो जाती है। फैक्ट्री आउटपुट मतलब आईआईपी 2% से कम है, डब्ल्यूपीआई 30 साल में सबसे ज्यादा है, सीपीआई खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन एक ही चीज निरंतर गिरती जा रही है, वो है सरकार की साख और उससे जुड़ा हुआ रुपया। यही कहते थे वो लोग, रुपया 78 की ओर भाग रहा है, धीरे धीरे 80 की ओर भाग रहा है, और लग रहा है पेट्रोल और रुपए के बीच में होड़ चल रही है कि 100 पर कौन टिका रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की बेरुखी, सरकार की उदासीनता और सबसे ज्यादा सरकार का निकम्मापन हम सबके जीवन पर प्रहार कर रहा है। लेकिन मोदी जी, उनके मंत्री और वित्त मंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आप महंगाई की बात करिएगा तो शायद आपको बताया जाएगा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, अब हो सकता है बोल दे हम आलू भी नहीं खाते हैं। तो दिक्कत की बात यह है, हर इशू डिस्ट्रैक्शन के लिए रहेगा, हर इशू ध्यान भटकाने के लिए रहेगा, लेकिन जो सबसे जरूरी इशू है महंगाई और बेरोजगारी, उस पर सरकार
के कान पर जू नहीं रेंगती है, इनकी तरफ से सुई पटक सन्नाटा रहता है। आप महंगाई की बात करिएगा, ये कहीं और की बात आपको ले जाएंगे। तो हमारा इस मंच से ये मानना है कि आम लोगों का जीवन जीना दूभर होता जा रहा है और इस सरकार को बिना वक्त जाया किए लोगों की जेब में पैसा डाल के कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए और महंगाई को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी कट करना चाहिए, जिसका अच्छा इफेक्ट खुदरा महंगाई पर भी होगा और थोक महंगाई पर भी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो 8 साल में रिटेल इन्फ्लेशन है वो इस महीने फिर बढ़ेगा और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी और हम और आप अपनी कमर तोड़वाते रहेंगे। I will very briefly just sum it up in English. Due to the unbridled prices of food and fuel, wholesale price inflation has today crossed a 30-year high of 15.08%. The retail inflation is at an 8-year high, and this is going to spiral into retail inflation as well for the month of May. What is spiking prices? Food and fuel, yes, but vegetables, which have seen a price rise of nearly 23%. Food prices are up nearly 8.5%, and as a direct consequence of low wages and unemployment, reports suggest that consumption of vegetables has nearly halved in big markets. From this very platform, we want to tell the government, instead of resorting to weapons of mass distraction, you might as well focus on the one issue that matters, and that is to rein in high prices, because this impacts every individual. It impacts the poor, it impacts the middle class, it impacts the homemaker, it impacts the professional, it impacts everybody. And your constant attempts to distract from those issues are only making matters worse, because the reality is Indians are having to bear the brunt of high prices at a time when 83% have seen income erosion, and of course unemployment is at record levels. Thank you very much. Any questions, you are welcome to ask. First on inflation, then on other issues. मैं इससे वाकया नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि आप गांव देहातों शहरों में जाइए, लोग वाकई में महंगाई से परेशान हैं। जनता बिल्कुल विमुख है, जनता त्रस्त है। मुझे लगता है जनता का दर्द दिखाया नहीं जा रहा है। अगर सब्जियों का खपत आधा हो गया है तो ये त्रस्त और परेशान जनता की ही निशानी है। मुझे लगता है महंगाई पर एक बड़ा डिबेट होना चाहिए। महंगाई शायद हर रोज का एक डिस्कशन होना चाहिए, जिससे ये सोती हुई सरकार जागे। मैं बिल्कुल असहमत हूं। मुझे लगता है जनता त्रस्त है, परेशान है, आमदनी कम हुई है और खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चुनाव होता है, चाहे जिन राज्यों में हुआ है या जिन राज्यों में होने वाला है, जिस तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है, जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह के डिबेट्स होते हैं, जिस तरह की दलीलें दी जाती हैं, वो मूल मुद्दों से हटके दिया जाता है। हाँ, विपक्ष ने ये मुद्दे उठाने की कोशिश करी और हमें दुख है कि हम सफल नहीं हो पाए लोगों को कन्विंस करने में, क्योंकि जो मुद्दे शायद इमोशनल होते हैं वो ज्यादा कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि अभी देश में क्या हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि अराजकता होने में देर नहीं लगती अगर इस तरह की महंगाई और बेरोजगारी बनी रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीतना किसी भी सरकार को यह लाइसेंस देता है कि आप लोगों का गला रेतिए, आप लोगों की कमर तोड़िए, आप लोगों की जेब पर डाका डालिए। और यह सच है, आपने चुनाव जीतने की बात कही। हमारा एक सिस्टम है, उत्तर प्रदेश से जहां से मैं आती हूं, 3 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को मिले, लेकिन उनके खिलाफ 5 करोड़ वोट पड़े। उन 5 करोड़ लोगों को बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा लगता है। जीत इस बात को नकार नहीं सकती है। Can we go to him and then I'll come back? आदरणीय मित्र, इसका एक व्यापक जवाब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल जी दे चुके हैं और मुझे लगता है कि वो पार्टी का औपचारिक स्टैंड है. कैन आई गो टू हिम एंड देन आई विल कम बैक टू यू. My friend, what I said was in context of the Supreme Court judgment and what AIADMK had decided. Everybody is entitled to their opinion. My point is very, very simple. Not only as a congressman, but as an Indian, I want to ask everybody, do we support murder of prime ministers in this country? Do we support punishment for terrorists and murderers, or do we support granting pardon to them? Do we support that the law must take its course where those who have assassinated a Prime Minister of India must be given full punishment for the crime that has been upheld up to the Supreme Court of India? Or are we going to say that moment the government would change and a different government would come, they will create circumstances where Supreme Court would be exercising its power on account of inaction of the government which was adversarial to the Prime Minister who was assassinated? Then this will lead to a situation which will neither be in tune with Constitution nor democracy. आदरणीय साथी, शायद आपने इस पूरे केस का अध्ययन नहीं किया. इस केस में उन सारे हत्यारों को फांसी की सजा मिली थी और माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 7 हत्यारों को उनकी सजा कम्यूट करके उसे लाइफ सेंटेंस यानी आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था. सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया. आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय दे दिया. मेरा आपसे यह कहना है, अगर सब आजीवन कारावास के जो कैदी हैं उन्हें छोड़ना है तो हजारों कैदी तो हमारे तमिल भाई बहन हैं, फिर उन्हें भी छोड़ दीजिए. या सिर्फ राजीव गांधी के हत्यारों को ही छोड़ना है? लाखों कैदी और हैं इस देश की जेलों में. अगर क्राइटेरिया यह है कि आजीवन कारावास के हर व्यक्ति को कुछ समय के बाद छोड़ देना है, तो फिर कानून बदलिए, लिख दीजिए कि इतने आजीवन कारावास का मतलब इतने साल की सजा है. फिर कानून में तब्दील करिए और तब तक सबको छोड़ दीजिए. मेरा केवल आपसे ये कहना है, किस व्यक्ति का, किस दल का क्या राय है, कौन हमारे साथ अलायंस में है, कौन नहीं है, मैं उस बहस पर नहीं जा रहा. मैंने आपको एक भारतीय और एक कांग्रेसमैन के तौर पर एक बात रखी है. यह निर्णय AIADMK बीजेपी की सरकार ने लिया था. आज किसकी क्या राय है वो एक अलग बात हो सकती है. और इस निर्णय को खारिज भाजपा के नेता, जो उस समय गवर्नर मनोनीत किए गए थे, जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस निर्णय को खारिज नहीं किया. उल्टा राष्ट्रपति जी को भेज दिया. राष्ट्रपति जी भी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एक्ट करते हैं. तो मुझे यह बताइए कि क्या अगर सरकार बदल जाएगी, कोई अनहोनी हो जाए, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए, दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, वो कहेगी नहीं नहीं अब इन हत्यारों को छोड़ दीजिए? क्या हत्या, उग्रवाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा, इस पर राजनीतिक रंग भेद हो सकता है? इसीलिए हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूरे देश के लोग
जो उग्रवाद से लड़ने के बारे अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं, आज बहुत निराश है। I agree with you. Shri Rahul Gandhi, Srimati Priyanka Gandhi, both in their own humane way as individuals came forward and said they harbor no ill will for the murderers of Shri Rajiv Gandhi. And then also you asked me this question, and I said, as a congressman and as a citizen, I feel the family may harbor no ill will. Rahul ji, Priyanka ji, Sonia ji harbor no ill will, for they believe in the philosophy of Mahatma Gandhi and Buddha, and the years-long traditions of this country, where you pardon anybody who has harmed you and given you the worst wound that anybody can give you. But that does not change the law and the constitution of this country, my friend. And the responsibility today to implement the law of the land was that of Shri Narendra Modi. And despite our differences with him, we did not expect that a nominee of Modi government would commit inaction, and that inaction will lead to release of murderers and terrorists who committed murder of a former Prime Minister of India. So it is beyond what Shrimati Sonia Gandhi, Shri Rahul Gandhi and Shrimati Priyanka Gandhi Vadra feels, and we respect as congressmen and as Indians their sentiments of not harboring any ill will. But I am saying in another capacity, as somebody who practices law, as somebody who is a citizen of this country, and somebody who is a congressman and outraged by the murder of my leader, that if murders are going to be released in this fashion, just because there is a different government in power, then it doesn't bode well for India, and it doesn't bode well for anybody who is committed to fight terrorism in this country. आदरणीय साथी, 2 दिन से हम इस बात का जवाब दे रहे हैं। शायद आप अगर कल की हमारी प्रोसीडिंग्स निकाल लें, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है। मुझे ये विश्वास है, राइट टू वर्शिप एक्ट 1991 हिंदुस्तान में है। भगवान श्री राम मंदिर का निर्णय जो व्यक्ति मानता है, मुझे लगता है कि उस निर्णय में पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है, और सब व्यक्तियों को भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना करनी चाहिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय करेगी, हमें ऐसी अपेक्षा है। आई थिंक आई आंसर्ड द क्वेश्चन जो एक और आदरणीय मित्र ने पूछा, पर मैं फिर ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ये जवाब नहीं देना चाहती कि इस देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती, जैसा मेरी आदरणीय मित्र ने कहा, कि जो थोक महंगाई है वो 30 साल में सबसे अधिक क्यों है, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जवाब देना चाहती या अपनी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेगी कि खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा क्यों है, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि आपका गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपया क्यों हो गया, पेट्रोल डीजल 100 को पार क्यों हो गया, खाने का तेल 150 रुपया क्यों हो गया, आटा पिछले 6 महीने में 42% क्यों बढ़ गया, सब्जी जो है वो आपकी थाली से, दाल आपकी थाली से, इस देशवासियों की थाली से क्यों गुम हो गई, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और सब मुद्दों को ढांपते जाओ, ये भाजपा का मूल मंत्र बन गया है। धन्यवाद।